So actually, because of a bit of technical difficulties, we were not able to resume our classes in last couple of days. So today we'll be resuming from the topic which is supposed to be done now. Okay. So the next topic is going to be administrative reforms of Cornwallis. लास्ट सेशन में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से थ्रू मिलिट्री acumen as well as through administrative acumen he made some changes in the administrative system of India. But now we'll study about Cornwallis. अब यहाँ पर एक बहुत ही watershed event है because यहाँ से जो गवर्नर जनरलशिप है it will change in its nature itself because as you can see here that he was a nobleman and an aristocrat who followed the policy of peace. Now basically why this particular terms nobleman and aristocrat has been written specifically in case of Cornwallis and was not written in case of other governor generals, it's because there is a difference between how he dealt with the various issues in India as compared to the other governor generals. यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कॉर्नवालिस चूँकि एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे तो उन्होंने जो गवर्नर जनरलशिप के जो भी कैरेक्टर था उसको काफ़ी इफेक्ट किया. इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के केस में देख लें हम या फिर रॉबर्ट क्लाइव के केस में देख लें हम हमें ब्राइबरी के काफ़ी केसेस दिखते थे और जब अपर एक्लॉन्स में इतनी ब्राइबरी हो रही थी तो फिर नीचे के जो ऑफिसर्स थे या फिर जो सर्वेंट्स थे ऑफ द कंपनी दे ऑल वर टेकिंग ब्राइब्स, दे वर गोइंग विद देयर पर्सनल बिजनेस ऑल्सो इन ट्रेड एंड कॉमर्स. And lot of measures were also taken by Robert Clive as well as Warren Hastings, but still they were unable to curb the dishonesty of the officers. But from Cornwallis onwards, जो हायर echelons में कहने का मतलब गवर्नर जनरल और इस तरह के पोस्ट में जो ब्राइबरी और इस तरह के केसेस थे वो ऑलमोस्ट निल हो गए थे. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी जो कॉर्नवालिस के टाइम पर आई. इसके अलावा कुछ टास्क थे जो कटआउट थे. हमने पहले भी देखा किस तरीके से इसके पहले के जो गवर्नर जनरल्स हैं उनके केस में एक टास्क कटआउट रहता था जब वो गवर्नर जनरल यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव हो. बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव के केस में एज यू ऑल नो रॉबर्ट क्लाइव को कहीं ना कहीं फाउंडर ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कहा जाता है. तो ही वॉज सेंट टू कंसोलिडेट द पावर इन इंडिया. Later on, Warren Hastings was sent also to extend that particular control. Now, Cornwallis was sent for the Peaceful Act. After Pitt's India Act, some actions were taken. Pitt's India Act एक एक्ट है जो कंपनी का एक्ट है जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में आया था और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे मेजर्स लेने के लिए बोला गया था जैसे कि शांति बने इन ऑल द colonial regions in India itself, in Bengal, Bihar and all these regions as well as South. Okay, please excuse me. So then, those particular tasks which were cut out for Cornwallis were solution of the land revenue problem. जैसा कि आपने अभी तक देखा लैंड रेवेन्यू ही वो चीज़ थी जिस कारण से कि अंग्रेज़ों ने आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी. तो लैंड रेवेन्यू एक ऐसा इशू था जो ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन था कि जो सुलझ ही नहीं रहा था. तो इसे सुलझाने के लिए बहुत सारे मेजर्स वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी किए जिन्हें एक्सपेरिमेंटेशंस के नाम पे हमने पढ़ा था पहले सेशन में. जैसे कि 5 ईयर सेटलमेंट प्लान किया था पहले, उसके बाद 1 ईयर सेटलमेंट प्लान किया था और उसके बाद ड्यूरिंग कॉर्नवालिस permanent settlement was taken up, which we'll be reading in coming up sessions. But right now I'm just giving you a hint of it that in permanent settlement initially 10 years of settlement was done and later on it was done for perpetuity, that is for permanent basis. Okay, so these all things were asked from Cornwallis. Apart from that, Cornwallis was also asked to establish honest and efficient judiciary. Now the system of judiciary in India, as we all know that in the last session also during Warren Hastings we observed that he went back to the Mughal system of judiciary and all. He declared Nizamat as well as the revenue collection department of the Mughal time was included and was proceeded with. But during his time he basically dealt with the changes in the judicial system itself. कि जजमेंट किस तरीके से दिया जाए, वो किस बेसिस पे दिया जाए, इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे ही कॉर्नवालिस ने चेंजेस लाने की कोशिश की जो कि हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा कुछ रीऑर्गेनाइजेशन की भी उससे डिमांड की गई ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट. जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इंडिविजुअल ट्रेड, पर्सनल ट्रेड बहुत बढ़ गए थे.
इस कारण से कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस हो रहा था। तो इन लॉसेस को कर्व करने के लिए कॉर्नवालिस वाज आस्क्ड टू रिफॉर्म द कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो ये कुछ टास्क थे जो कटआउट थे, और अगर हम आगे अब जब पढ़ेंगे तो हमें ये दिखेगा कि किस तरीके से कॉर्नवालिस ने एक सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया था ऑन व्हाट हेस्टिंग्स डिड। इफ हेस्टिंग्स innovations and experiments were the base, then Cornwallis once was basically the superstructure। तो ये कुछ चीजें थी जो कॉर्नवालिस के टाइम पर हुई, और ये जो चेंजेस थे ये 1858 तक चले। कहने का मतलब ये बने थे 1793 तक, और ये 1858 तक चले। They were so effective and so efficient for the colony, and how it was for Indian people that will be looking up। Okay, इसमें से कुछ चेंजेस तो इवन आज तक चलते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सीआरपीसी आईपीसी की जो प्रावधान है, जो रिसेंटली भारतीय दंड संहिता और इनमें इनको नाम चेंज करने के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए गए हैं, ये यही सब हैं जो कॉर्नवालिस कोड से निकल कर आए हैं। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आगे आप और समझेंगे इसके बारे में। इसके अलावा ये सिस्टम 1858 तक चला था। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हाउ कॉर्नवालिस चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ऑन ऑल द रीजन्स which company ruled over। okay, now there were some judicial reforms। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स जो कॉर्नवालिस ने किए थे उसमें सबसे पहला रिफॉर्म था। रिफॉर्म क्या था? वो तो एक कंटिन्यूटी ही थी। कलेक्टर्स, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे कलेक्टर्स एक नया टर्म आया था जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस है अगर, तो उस डिस्ट्रिक्ट से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है विच इज बीइंग कलेक्टेड बाय द जमींदार्स और हुएवर इज गोइंग टू बिड फॉर द हाईएस्ट फॉर दैट पीस ऑफ लैंड। ओके, so after collecting that revenue it was given to collector। okay, the collector was a European officer। तो इनिशियली क्या हुआ, कॉर्नवालिस उसी धर्रे की कंटिन्यूटी करते हुए, वही जो सोच थी उसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा, और सारी जो पावर्स थे वो कलेक्टर के हाथ में रख दिए। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं बताया जाए तो कंपनी भी यही चाहती थी। कंपनी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे, उनका भी कहीं ना कहीं यह मानना था कि कलेक्टर्स के अंडर में ही सारे पावर्स कंसंट्रेट कर दिए जाएं ताकि एक कंटिन्यूटी बने। ठीक है, जैसे कि अब आपको अगर बताया जाए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ये देखेंगे कि जैसे अभी रिसेंटली हमारा एग्जांपल था ऑफ आवर फेमस फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ, मिस्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। सो इन दैट केस व्हाट यू माइट हैव सीन इज दैट कि आवर प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड दैट व्हाई नॉट मेक द फॉरेन सेक्रेटरी द फॉरेन मिनिस्टर इटसेल्फ, बिकॉज by doing that a kind of continuity is maintained। so in the same way the collector was given all the powers so as to ensure continuity, so that कंपनी को कुछ चेंजेस ना करने पड़े इस तरीके के, और अपने ऑफिसर्स जो पहले से काम कर रहे हैं वही और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके चीजों को और एफिशिएंट बना सके। तो पहला तो जो चीज हुआ वो कंटिन्यूटी का ही हुआ, तो यहां पे कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा था कि कलेक्टर्स वर मेड जजेस ऑफ द दीवानी अदालत इन 1787। दीवानी अदालत जो कि जितने भी सिविल केसेस थे, रेवेन्यू केसेस थे, इनको देखने की जो अदालत अपॉइंट की गई थी, जो कि कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग्स ने ग्रेटर मुगल्स के टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम था उससे रेफरेंस लेके बनाया था। सो इन दोज दीवानी अदालत्स वर मेड अंडर कलेक्टर्स ओनली। सो कलेक्टर्स के पास एक डुअल रोल आ गया। अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन दे वर आल्सो मेड judges of these adalats। okay, so basically by that what it means is that along with revenue collection they'll have to look into the various cases which come to them of civil nature। by civil nature we basically what we mean is that all the cases related domestic issues like marriage or property disputes and all these kind of cases along with revenue cases। okay, so all these cases come under the district Diwani Adalat which was being judged by the collector himself। along with that he was given more magisterial powers। now what are magisterial powers? Magisterial powers basically mean that order to arrest and all, in order to give order to arrest। आप लोगों को पता ही होगा अभी भी जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान जब अरेस्ट होता है तो विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, ये एक रूल है। तो वैसे ही ये मजिस्ट्रियल पावर्स जो होते हैं, और फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि ओके दिस पर्सन नीड टू बी सेंट टू द जेल और नॉट। ओके, या कोई गवाही ही देनी है तो मजिस्ट्रेट के सामने होगा ये। तो इन द सेम वे मजिस्ट्रियल पावर्स जो थे वो कलेक्टर को दे दिए गए। इन दिस केस द मजिस्ट्रियल पावर बेसिकली मींस द पावर टू अरेस्ट एंड ऑल। ओके,
and apart from that the collector was empowered to try criminal cases also. Okay, आपने पहले देखा होगा कि in the last session when we discussed we came to know that these criminal cases and all come under फौजदारी कोर्ट, और फौजदारी कोर्ट was run under Mohammedan law and they were basically presided by some Indian judge. Okay, but now the collector was empowered to try criminal cases with certain limits. There were certain limits to it. Okay, we'll discuss those limits. वो लिमिट्स कुछ इस नेचर की थी जैसे कि अगर फांसी की सजा देनी है तो उसमें सदर निजामत अदालत जो है, जो बेसिकली आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ हाई कोर्ट कह सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, तो उनके पास ये पावर रहती है कि वो फांसी की सजा जो है वो इस तरह की सजाएं जो बहुत ही हैवी कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैं उनको देखने के लिए यूल हैव टू रेफर टू सदर निजामत अदालत. तो ये कुछ लिमिट्स लगाए गए थे कलेक्टर्स के ऊपर. ओके, तो ये हो गए पर्टिकुलर कुछ चीजें जो इनिशियली की गई. अभी रिफॉर्म एग्जैक्टली शेप अप नहीं हुआ है, बस उसका एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बेस तैयार हो रहा है. ओके, ये अर्ली ईयर्स में था ऑफ कॉर्नवालिस. ओके, नाउ चेंजेस इन फील्ड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में किस तरह के चेंजेस लाए गए इसके बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वाज एबॉलिश्ड. ओके, एज आई टोल्ड अर्लियर आल्सो कि कलेक्टर्स के पास पावर आ गए थे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के. सो इन द सेम वे द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत was left with no power and it was abolished. Okay, so first step which was taken was abolition of district फौजदारी अदालत. Then 4 circuit courts, 3 in Bengal, 1 in Bihar were set up. Now what are these 4 circuit courts? Circuit courts are basically those courts which used to govern over या whose jurisdiction was over a very huge area. Okay, Bengal, Bihar, Odisha मिलाकर there were only 4 circuit courts, 3 in Bengal. In Bengal they were in Murshidabad, Calcutta and Dhaka. Dhaka, which is the present day capital of Bangladesh. So these 3 circuit courts in Bengal and 1 in Bihar, which was established in Patna. 4 circuit courts were made so as to try over criminal cases. This was another reform which was done. Then circuit courts were presided by European covenanted servants. Now who are covenanted servants? अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम ये देखेंगे कॉविनेटेड जो सर्वेंट्स होते हैं उसका मतलब बेसिकली गजेटेड ऑफिसर होता है. कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो हायर ऑफिसर्स हैं. ठीक है, जैसे वो लोअर लेवल या लोअर सबऑर्डिनेट जो आजकल जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो ऑफिसर्स नहीं है. दे आर इन प्रेजेंट टाइम्स इफ यू लुक इनटू दैट वी कैन से दैट दे आर लाइक क्लास 1 ऑफिसर्स, ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर्स which we can compare with IAS nowadays or IPS nowadays or forest officer nowadays. So at that level those kind of covenanted European officers were made the judges of these circuit courts. Then there was Sadar Nizamat Adalat, okay, which was above circuit courts. Circuit court, the 4 circuit courts I just told you. Now Sadar Nizamat Adalat जो थी वो मुर्शिदाबाद में थी. तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करने के लिए और उसके ऊपर और ज्यादा एक विजिलेंस रहे इसके लिए सदर निजामत अदालत जो है वैसी एक अदालत जो है वो कलकत्ता में बनाई गई. ओके, मुर्शिदाबाद वाली अदालत को बंद कर दिया गया और वैसी अदालत जो है वो कलकत्ता शिफ्ट कर दी गई. ये एक और अनदर रिफॉर्म विच वी कैन से दैट कॉर्नवालिस ब्रॉट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सदर निजामत अदालत वाज कंप्राइज्ड ऑफ गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ सुप्रीम काउंसिल. जो सुप्रीम काउंसिल which was sitting in Calcutta itself, and after regulating it, which was the supreme council of all the British colonies in India. So these couple of people, Governor General along with some members of the Supreme Council, they used to preside over Sadar Nizamat Adalat. And of course यहाँ पर ये नहीं हुआ कि उन्होंने अपने मन से या फिर बिना किसी हेल्प के उन्होंने इसके ऊपर प्रेसिडेंस की. इसके लिए उन्होंने चीफ काजी या चीफ मुफ्ती जो कि इसके पहले सदर निजामत अदालत के हेड हुआ करते थे, नाजिम की हेल्प किया करते थे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको. वैसे ही अभी भी चीफ काजी और चीफ मुफ्तीज रखे गए थे, बट वो कहीं ना कहीं एक सब्सिडियरी रोल में थे, वो मेजर रोल में नहीं थे. मेजर रोल में गवर्नर जनरल और मेंबर्स ऑफ सुप्रीम काउंसिल थे, और चीफ काजी और चीफ मुफ्तीज जो थे वो हेल्प कर रहे थे समझने के लिए कि अगर कोई क्राइम हो रहा है और चूंकि वो इंडियंस कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उस पर किस तरीके की जजमेंट दिया जाए, किन रूल्स के अंतर्गत इनको देखा जाए. तो ये कुछ चीजें की गई थी. इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े
तो हमें दिखता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अब हम बात करेंगे कॉर्नवालिस कोड के बारे में। अब देखिए कॉर्नवालिस कोड जो है ये बनना तो स्टार्ट हो गया था राइट फ्रॉम द मोमेंट कॉर्नवालिस केम टू इंडिया, बट द फाइनल शेप इट गॉट वाज इन 1793. इफ समबडी आस्क यू that when did the Cornwallis Code came, you'll have to say 1793 because जो ending tenure था, जो end year था of the tenure of Cornwallis, at that time this Cornwallis Code was brought into its final shape. Okay, now what all happened in the Cornwallis Code? First of all, it was based on principle of separation of power. Now what is separation of power? See, राइट नाउ अभी के लिए तो सेपरेशन पावर समझना हम लोगों के लिए बहुत ईजी है बिकॉज हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये थोड़ा पॉलिटी का हो जाएगा बट स्टिल मैं जस्ट दे रहा हूँ आपको जस्ट फॉर रेफरेंस कि केशवानंद भारती केस जो था जो 1973 में हुआ है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था विच इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन पावर बेसिकली मीन्स इज दैट कि ये एक सिस्टम होता है ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। कहने का मतलब कुछ ऐसे इसके कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो साइमल्टेनियसली काम करें और साथ ही साथ एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस में रखें। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है एंड आर्बिट्ररी एक्शन जो है उसको चेक किया जाता है कि अपने मनमाने तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन काम ना करे। और ऐसी ही सोच जो कुछ कॉर्नवालिस की थी, अगर इस सोच का हम सोर्स देखें कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, सो इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच कॉर्नवालिस वाज वेरी मच अवेयर ऑफ। So he was very much influenced by French philosophers, we can say by Voltaire and all, and that's why he tried to mold the Indian administrative system or Indian judicial system on the principle of separation of power. Okay, now why did he arrive on this particular principle? Because what he found is that collector, the kind of powers which are bestowed on the collector, they basically come under conflict of interest. Because if you can see that collector was given two responsibilities, as a matter of fact 3 responsibilities. The first one was of revenue collection. Now the first thing was of revenue collection. The second one was of the judgeship over civil cases, and then he was also given magisterial powers. Okay, now there was huge conflict of interest in these two powers. सपोज कीजिए कोई कलेक्टर जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन में ही कोई गलती कर रहा है, वो किसी तरह का करप्शन कर रहा है, तो हाउ कैन ही बी द जज ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट विच ही हिमसेल्फ इज डूइंग। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं कॉर्नवालिस ने सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हुए कुछ जुडिशियल और मैजिस्ट्रियल पावर्स जो थे वो कलेक्टर से हटा लिए, कलेक्टर से छीन लिए। ही वॉज डाइवेस्टेड ऑफ ऑल दीज पावर्स, जुडिशियल पावर, और केवल कलेक्टर को रेवेन्यू कलेक्शन का काम छोड़ दिया। और साथ ही साथ एक नए पोस्ट जो है उसका इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुई हम कह सकते हैं, विच वॉज द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, इट वॉज अ न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर, इट वॉज अ न्यू क्लास। टिल नाउ व्हाट यू हैव रेड इज दैट वन क्लास इज कलेक्टर, okay, whose power was centralized during Warren Hastings and later on during Cornwallis's early years. Okay, he was given three functions, 3 responsibilities. But what basically Cornwallis found is that there is clear-cut conflict of interest among the powers which are bestowed on him. So he took away two basic responsibilities of powers which were vested to the collector, which are the judicial and magisterial powers. Okay, ये ले लिया और डिस्ट्रिक्ट जज का एक नया पोस्ट बनाया, और डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट को जो है बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड क्वाइट वेल कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पहली तो प्रिसाइडिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, ओके, एंड मैजिस्टीरियल एंड पुलिस फंक्शंस। ओके, ये भी दे दिया। कहने का मतलब ये सारे के सारे, ये वाला पावर भी, कहने का मतलब जजशिप ऑफ सिविल केसेस एंड मैजिस्ट्रियल पावर्स, ये दोनों के दोनों लेकर डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया गया। अब यहां पे एक इशू और आया कि देखिए सिविल कोर्ट, जो सिविल केसेस जो हैं, सिविल केसेस का डेफिनेशन पहले क्या होता था कि सिविल केसेस के अंदर रेवेन्यू के केसेस भी होते थे
और साथ ही साथ जो वेरियस डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, मैरिज रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो ये कुछ केसेस थे जो कि सिविल में माने जाते थे। इनको एज सेपरेट केसेस हैंडल किया जाता था। कहने का मतलब once we are calling a particular case as a revenue case, it was not called as a civil case. So what Cornwallis did is that he took away this particular division. ये क्लासिफिकेशन ही कॉर्नवालिस ने हटा के रख दिया और इन दोनों केसेस को सिविल केसेस ही बुलाने लग गए। कहने का मतलब कोई रेवेन्यू का केस अगर होगा या कोई सिविल केस होगा, कहने का मतलब मैरिज रिलेटेड केस होगा या लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड केस होगा या कोई किसी तरीके की पार्टीशन हुआ है अमंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एंड ऑल, तो ये सारी की सारी चीजों को सिविल केसेस के अंदर ही डालने लग गए। ठीक है, विच विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिफॉर्म विच कम्स अंडर कॉर्नवालिस कोड, दैट इज दीवानी कोड्स। दीवानी कोड्स का किस तरीके से रिफॉर्म किया अब हम वो देखेंगे। सो दीवानी कोड्स वाज सेटअप जिसमें कि रेवेन्यू एंड सिविल केसेस वर मर्ज्ड। as I told you earlier before this point, revenue cases were not treated like civil cases, but now revenue cases and the basic civil cases were merged and it was kept under the district Diwani court. Okay, तो ये सेटअप किया गया। अब इसमें एक हायरार्की बनाई गई। ओके, जब आप इसके अंदर हायरार्की देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज दैट एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की देयर इज मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट, देखिए अब यहां पे जब भी मैं बात करूंगा तो आप समझिएगा मैं सिविल केसेस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। क्रिमिनल केसेस की बात हम फौजदारी कोर्ट की जब बात करेंगे तब करेंगे। ओके, तो यहां पे हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं, तो सिविल केसेस में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे नीचे मुंसिफ कोर्ट रखा गया जिसमें कि 50 रुपए या उससे कम अमाउंट का कोई भी केस आता है तो उसको रखा गया। ओके, तो ये पहला डिस्टिंक्शन किया गया। इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार्स। तो इसके ऊपर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार्स बनाया गया जो कि 200 रुपए या उससे कम के केसेस हैंडल करता था। ओके, आफ्टर दैट केम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील था। कहने का मतलब सपोज कीजिए आपका कोई केस है, आपने कोई रेवेन्यू दिया है, उसमें कोई इशू आ रहा है, या फिर कोई ऐसा केस है जिसका जो अगर हम मोनिटाइज करें उसको, उस लैंड को मोनिटाइज करें, या आपस में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैंने आपसे सामान खरीदा मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, इस तरह के ट्रांजेक्शन अगर 20 रुपए या 20 रुपए से कम हो या फिर वो 50 रुपए या 50 रुपए से कम हो, तो इन दोनों केसेस में इफ द वर्डिक्ट केम अगेंस्ट मी देन वेयर शुड आई गो? देन आई शुड बी गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज यू ऑल नो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते थे, क्योंकि जस्ट मैंने बताया एक न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर बनाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, सो नाउ द कोर्ट ऑफ अपील for these two lower courts, that is court of registrar and the munsif court, was the district court. Okay, which was presided by the district judge. I told you earlier only ki what kind of powers district judge had after it was divested from the collector itself. Okay, now above this particular district court there were 4 provincial courts of appeal. Okay, अब ये 4 provincial court of appeal क्या है? 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील ये है कि सपोज कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जो जजमेंट है उससे आप यू आर नॉट ओके विद दैट, इफ इट केम अगेंस्ट यू एंड यू थिंक देयर इज सम रॉन्ग व्हिच हैज बीन डन टू यू, देन वेयर शैल यू गो? सो यू विल बी गोइंग टू दिस 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील. ओके, नाउ दीज 4 कोर्ट्स ऑफ अपील वर सेम एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो कि फौजदारी कोर्ट में किए गए थे, जो 4 सर्किट कोर्ट्स थे. तो कहने का मतलब ये सेम रखे गए थे 4 सर्किट कोर्ट. जिस तरीके से सदर निजामत अदालत और सदर आपका दीवानी अदालत ये 2 अलग बॉडीज थी, उस तरीके से प्रोविंशियल कोर्ट्स नहीं थे या सर्किट कोर्ट्स नहीं थे, वो सेम कोर्ट्स थे. वो 4 जगह में बनाए गए थे, मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता और पटना. 3 बंगाल में, 1 बिहार में. तो ये जो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील थे यही सर्किट कोर्ट्स भी थे. यहां पर आप कोर्ट ऑफ अपील कहने का था अपील लेके जा सकते हैं आप, और वहां पे आप अपने किसी भी इशू का आप समाधान ले सकते हैं थ्रू वेरियस लिटिगेशंस एंड ऑल. ओके, तो ये बना दिया गया था. और इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत था.
ओके और सदर दीवानी अदालत तो जैसे आप जानते ही कि इट वाज जस्ट लाइक यू कैन कॉल इट वाज लाइक अ सुप्रीम कोर्ट। ओके ऑल्दो देयर वाज a supreme court apart from that's why I'm not ready to use that term, but it's like the uppermost court on which you can go. Okay, but in the four provincial courts, apart from the various appeals which are coming, there might be some original jurisdictions also. कहने का मतलब कुछ ऐसे भी केसेस आप लेके जा सकते थे डायरेक्टली, जिस तरीके से आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर केस अगर आप निचली अदालतों में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जा सकते हैं एज एन अपील, लेकिन आप डायरेक्ट भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी प्रावधान रखा गया था और उस प्रावधान के अंतर्गत बेसिकली आप जो 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील है वहां पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन के लिए आप डायरेक्ट केस के लिए जा सकते हैं अगर आपका केस 1000 रुपए तक का होता है। ओके तो ये तो एक अगला वाला सेक्शन था 1000 रुपए तक का, और अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर किंग इन काउंसिल, ओके, विच इज इन लंदन इटसेल्फ। तो इस तरीके से हायरार्की बनाई गई थी। पहले मुंसिफ कोर्ट था, फिर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार था, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। ओके इसके बाद 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील थे और उसके बाद सदर दीवानी अदालत एंड आफ्टर दैट किंग्स काउंसिल। और उसके लिए सर्टेन अमाउंट्स डिसाइड कर लिए गए थे कि 20 रुपए, 200 रुपए, सॉरी 50 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए। और उसके बाद अगर किंग्स काउंसिल में अगर आप जाएंगे तो केस का जो वैल्यू है अगर उसको मनी टर्म्स में देखा जाए तो कम से कम 5000 पाउंड जितना होना चाहिए। इस तरीके से एक हायरार्की बना दी गई अंडर कॉर्नवालिस कोड। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज से if the person is not satisfied and if he is doing something wrong, then who will look into that? Who will reprimand the district judge itself? For that, these courts of appeal were asked to submit a report to the Sadar Diwani Adalat. Okay, और सदर दीवानी अदालत जो थी, जो कि गवर्नर जनरल के अंडर में थी, ठीक है, that was given the responsibility to take action of the district judge and to remove him. तो इस तरीके से एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम तैयार किया गया था, जिस कारण से कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी अकाउंटेबल रहे। अगर वो किसी तरीके से केसेस का ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा है या फिर वो किसी भी तरीके से कोई इश्यूज ऐसे क्रिएट कर रहा है जिससे कि लोअर कोर्ट्स जो हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील है वो इसका सुपरिटेंडेंस करेंगी और साथ ही साथ एक रिपोर्ट भेजेंगी सदर दीवानी अदालत को, विच विल बेसिकली रिमूव और आस्क द पर्सन टू रिजाइन हु इज प्रिसाइडिंग एज द डिस्ट्रिक्ट जज। ओके ये एक दीवानी अदालत में इस तरीके का कॉर्नवालिस कोड के नाम पे कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए गए। इसके अलावा एक चीज और की गई, ये फर्स्ट इन इटसेल्फ था कि पहली बार यूरोपियन सब्जेक्ट्स, कहने का मतलब जो यूरोपियन कहने का मतलब जो इंग्लिश हो गए या फ्रेंच हो गए या पोर्चुगीज हो गए या डैनिश हो गए, इस तरह के जो मर्चेंट्स जो कि इंडिया में काम कर रहे थे या किसी भी तरीके के ऑफिशियल लेवल पर या ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे थे, तो हाउ वर दे ब्रॉट इनटू द सिस्टम ऑफ जुरिडिक्शन। फॉर दैट कॉर्नवालिस कोड ensured that these particular European subjects will come under local civil courts itself. जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता के अंदर, which was given responsibility to look into all the jurisdiction under of the European or the English people. ओके एंड फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सदर दीवानी अदालत एंड द सदर निजामत अदालत। सो यहां पर उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को भी एड्रेस किया गया और इसे एड्रेस करते हुए जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, जो यूरोप के लोग थे जो वहां काम कर रहे थे, उनको लोकल सिविल कोर्ट्स के अंतर्गत कर दिया गया कि अगर आप भी कोई इशू क्रिएट करते हैं या आप पे भी केस अगर किसी को करना है या आपको किसी पे केस करना है, देन यू कैन गो टू द लोकल सिविल कोर्ट इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ओके इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो थे, दे वर मेड आंसरेबल टू द लोकल कोर्ट्स इटसेल्फ। ये एक नया इनोवेशन था, बिकॉज अभी तक ऐसा हो नहीं रहा था। अभी तक क्या था कि कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ रेशियल, जो वो तो खैर आगे भी परसिस्ट किया था, बट कहीं ना कहीं एक रेशियल ओवरटोन था टू द होल सिस्टम ऑफ जुरिडिक्शन और द होल सिस्टम ऑफ गिविंग जस्टिस, दैट द इंडियंस विल हैव टू बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट एंटिटी एंड द इंग्लिशमैन विल हैव टू बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट एंटिटी एज फार एज जस्टिस इज कंसर्न। कहने का मतलब जो इंडियंस है उनके लिए जस्टिस का सिस्टम अलग था, जो यूरोपियंस थे उनके लिए अलग था, लेकिन अब ऐसा नहीं रखा गया और जो इंग्लिशमैन हैं उनको भी कहीं ना कहीं परव्यू में ले आया गया ऑफ लोकल सिविल कोर्ट्स इन इंडिया।
और उनसे यह भी कहा गया कि अगर कोई पर्टिकुलर यूरोपियन जो है वो कलकत्ता के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना ट्रेड करना चाहता है, देन ही विल ओनली गेट द परमिट, इन दैट केस ही विल गेट द परमिट ओनली इफ ही सबमिट्स टू द पावर अंडर द लोकल सिविल कोर्ट और लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहने का मतलब सपोज कीजिए मैं यूरोपियन ट्रेडर हूं जो कि कलकत्ता रह के काम कर रहा है, तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सपोज करो मेरा मन करता है कि मैं दुर्गापुर चला जाऊं, तो वहां का जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आई विल हैव टू गिव अ एफिडेविट, आई विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट आई विल हैव टू अबाइड अंडर व्हाट आर द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जज और दैट पर्टिकुलर दीवानी अदालत, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, एंड देन ओनली आई विल बी अलाउड टू डू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। इसके अलावा इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को एबॉलिश कर दिया गया था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास मैजिस्ट्रियल पावर्स आ गए थे। मैजिस्ट्रियल पावर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको पावर ऑफ अरेस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं अंडर द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट विच आर टू ऑर्डर टू अरेस्ट एंड डिसाइडिंग पेटी केसेस। जो छोटे केसेस हैं उनको ट्राई करने के लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट जज था, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट, ही हैड द पावर टू सॉल्व पेटी केसेस, छोटे मोटे केसेस, नॉट बिग केसेस। ओके, अब बड़े केसेस का क्या होता था? बड़े केसेस का बेसिकली ये होता था कि जो ये 4 सर्किट कोर्ट्स मैंने आपको बताया या 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील बताए, इन केस ऑफ फौजदारी केसेस, इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस, these all 4 courts were called as circuit courts, but when they were treating or they were giving judgment on civil cases, then they were called as provincial courts of appeal। तो इन केस ऑफ सर्किट कोर्ट, जो सर्किट कोर्ट था उसके जो जजेस थे, ठीक है, यूरोपियन जजेस थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो साल में 2 बार चक्कर लगाया करते थे पूरे एरिया का। ओके, दे हैव टू गो ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, और वहां पे काम डिस्ट्रिक्ट जज का ये था कि जो बड़े केसेस हैं जिनको कि वो समझता है कि उनके ऊपर ट्रायल होना चाहिए और उनके ऊपर ही वांटेड अ वर्डिक्ट फ्रॉम द सर्किट कोर्ट इटसेल्फ, देन ही विल पुट दोस केसेस इन फ्रंट ऑफ द यूरोपियन जजेस, who of course they took help from Indian judges also, from Indian people also, some Indian officers also, but he'll have to submit those cases, commit those cases to the circuit court। इस तरीके से बड़े केसेस का जो निपटारा है वो किया जाता था। इसके अलावा सदर निजामत अदालत जो थी वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। जैसा कि मैंने आपको सिविल केसेस के केस में दिखाया कि पहले मुंसिफ कोर्ट था, उसके बाद कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार था, और इन दोनों की अपील जो थी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाती थी। लेकिन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो अपील्स थी वो जाती थी प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील में, जो कि सर्किट कोर्ट्स भी थे, और इनकी जो अपील है वो जाती थी सदर दीवानी अदालत के पास। और यहां भी अगर कोई इशू आता है तो किंग इन काउंसिल जाता था। लेकिन ये बातें क्रिमिनल केसेस पे लागू नहीं होती है। क्रिमिनल केस में आपका जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था वो सदर निजामत अदालत ही था। ओके, वहां पे किंग का कोई यहां पे रोल नहीं आएगा। और गवर्नर जनरल के पास देयर वर सम जनरल पावर्स ऑफ पार्डन एंड कम्यूटेशन। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि प्रेजेंटली भी जो प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ पावर्स, देयर आर सम पावर्स ही हैज, फॉर कम्यूटेशन। say someone has been given a capital punishment, he's been asked to be hanged till death, then he can move a particular, he can give an appeal for mercy to the president itself। okay, there are particular law which governs these all things। so इस तरह के जो पावर्स थे वो गवर्नर जनरल के पास थे, जो अभी भी परसिस्ट करते हैं। अभी भी जो हेड ऑफ स्टेट है हमारे, प्रेसिडेंट हो गई, जो अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास ये पावर है। अलग बात है कि अभी तो डेमोक्रेटिक सेटअप है और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही जाती है, लेकिन जो उस पर साइन है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। तो कम्यूट करने का, कम्यूटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपको एक कड़ी सजा दी गई है तो उसको एक हल्की सजा में चेंज कर दिया जाए। ओके, कम्यूटिंग इट और चेंजिंग इट्स नेचर which was hard into an easy one, or to a particular one on some particular grounds, like if a particular person is pregnant, a lady is pregnant and she asks for commutation, then after the pardon term is used only in the case of death penalty, but in other particular, like if there is 14 years rigorous imprisonment, if it has to be changed into 2 years or 4 years of imprisonment, it is called commutation। okay, so these powers were with governor general। okay, now
रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखिए अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी उसमें हमने देखा कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो लाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। इन दो जगहों पर ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ था, कहने का मतलब जिस बेसिस पर द फाउंटेन फ्रॉम वेयर दीज ऑफ सिस्टम्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, कुछ लॉ जैसे आज के टाइम पे अगर आप जान ही रहे हैं कि एक जज है वो जजमेंट दे रहा है, लेकिन जो जजमेंट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आईपीसी, सीआरपीसी, जिनका नाम अब चेंज कर दिया गया है, भारतीय दंड संहिता रख दिया गया है, और देयर इज अनदर टर्म फॉर इट। सो ऑल दी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज लॉज दोज वर्डिक्ट्स आर बीइंग गिवन। तो कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत इन लॉ को ही चेंज करने की कोशिश की गई और काफी हद तक चेंज कर भी दिया गया, इनका नेचर चेंज कर दिया गया। ओके तो इसके अंदर सबसे पहले तो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ डिवाइनली ऑर्डेन्ड। बेसिकली इसका मतलब यह है कि जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि जो क्रिमिनल केसेस है, जो सिविल केसेस हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं यह था कि अगर कोई हिंदू का केस है तो वो हिंदू लॉ के अंतर्गत इट विल बी डेल्ट विद, एंड इफ सम पर्टिकुलर इफ पर्सन फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी कम्स देन it is being governed by Mohammedan law or Sharia, as I told earlier also. But in the case of criminal administration, criminal justice, what is being done is that all those laws on which those particular verdicts were being based were Mohammedan laws only. ओके अब मोहम्मदन लॉ में किस तरीके का आता है, कुछ इश्यूज थे जैसे कि उसके अंदर डिवाइनली ऑर्डेन्ड माना जाता था। कहने का मतलब कहा जाता था कि कहीं ना कहीं ये भगवान की तरफ से दिया गया है और इसलिए इसमें कहीं ना कहीं एक रिलीजियस नेचर था। इसका रिलीजियस नेचर जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं फेल हो जाता था, और इस बात को समझते हुए कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की और कहा ये कहीं ना कहीं दिव्य है और इसको कहीं ना कहीं लोगों के लिए लाने की जरूरत है। तो उसको लाने के चक्कर के लिए कुछ चेंजेस लेकर आए जो कि रेगुलराइज कर दिए गए बाय पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1797। अब ये चेंजेस क्या थे? जो मर्डर ट्रायल था इट वाज गाइडेड बाय इंटेंशन नॉट परपेट्रेशन। इसका मतलब बेसिकली ये है कि पहले जब कोई भी इंसान कोई मर्डर करता था तो वो जो मर्डर का एक्ट है उस पर ही जजमेंट दिया जाता था। अगर उसका इंटेंशन क्या था उस इंसान का, सपोज करिए कि कोई इंसान अनइंटेंशनली किसी को मार देता है, ठीक है, जैसे कि आपके हाथ में चाकू है और आप स्लिप कर गए और किसी की डेथ हो गई उसके कारण से, तो इट वाज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सीडेंट, इट वाज ट्रीटेड एज मर्डर ओनली। ओके और एविडेंसेस का कोई भी वैल्यू नहीं था वहां पर, क्योंकि एविडेंस के नाम पर भगवान के नाम की सौगंध दिलाई जाती थी। कहने का मतलब अगर कोई इंसान खड़े होकर बोल देता है कि मैं भगवान का नाम लेकर ये कहता हूं कि मैंने खून नहीं किया है या फिर मैंने खून किया है, ठीक है, तो फिर उसकी इस बात को सच मान लिया जाता था। तो इस तरह की बातों से कॉर्नवालिस वाज नॉट सो मच सेटिस्फाइड। ही सेड कि नो दिस इज नॉट द राइट वे एंड पीपल माइट लाई बिकॉज इट इज ह्यूमन टू एरर। कहने का मतलब गलती करना एक इंसान की फितरत है और झूठ बोलना भी फितरत है, और एक ह्यूमन माइंड जो है वो केपेबल है टू कॉम्प्रीहेंड ऑल दीज केसेस। सो दैट्स व्हाई ही सेड नो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओके एंड वी शुड लुक इनटू अदर वेज थ्रू विच a particular judgment is to be decided, and while deciding the judgment evidences need to be taken into fold। और एक तरह की जरह होनी चाहिए दो पार्टीज के बीच में और फिर डिसीजन पे आना चाहिए जिसमें एविडेंसेस की भी वैल्यू होनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात की भी वैल्यू होनी चाहिए कि किस तरीके से, किस इंटेंशन से उस इंसान ने वो पर्टिकुलर एक्ट जो है, वो क्रिमिनल एक्ट जो है परफॉर्म किया है। तो इंटेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया परपिट्रेशन के अलावा। उस एक्ट का जो इंटेंशन है उसकी वैल्यू होने के कारण कुछ रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें एक ये था। दूसरा, मर्डर केस विल ऑफ द एयर नॉट अलाउड। विल ऑफ द एयर नॉट अलाउड का बेसिक मतलब ये है कि कई बार पता नहीं मूवीज का अगर हम रेफरेंस ले तो देयर इज अ वेरी फेमस मूवी बाय नागेश कुनूर कॉल्ड डोर। तो डोर मूवी का जो प्रीटेक्स्ट है मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। उसमें बेसिकली as we all know that a lot of people from India go to Saudi Arabia and all these Islamic countries to work there as labor. So someone from Rajasthan and another person from Kashmir, if I'm right, these two people went to Saudi Arabia, and what happened? These two men who went there, they used to live in the same room itself. They used to share a room, share an apartment, and by mistake they both had a fight. And by mistake the one person pushed the another person and another person fell off the roof and died. Okay, now according to Saudi law, according to the Sharia law, what happened, the person who perpetrated the act, okay, he
he was put on trial and he was given capital punishment, उसको फांसी की सजा दे दी गई और कैपिटल पनिशमेंट ही इंश्योर कर दिया गया, जबकि उसका इंटेंशन नहीं था मारना। और इसका सॉल्यूशन ये दिया गया कि अगर उस जो इंसान जिसने धक्का दिया है वो उसके घर वाले, अगर जो इंसान मर गया है उसके घर वालों को कन्विंस कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि भाई नहीं, इसको आप फांसी मत चढ़ाओ और हम इसे माफ करते हैं, तो फिर उसे माफी मिल सकती है। तो ये मूवी इसी कॉन्टेक्स्ट के अराउंड घूमती है कि किस तरीके से जो इंसान, जो परपिट्रेटर था जिसने कि उसकी हत्या कर दी थी और ही पुश्ड द पर्सन टू डेथ, उसकी वाइफ किस तरीके से जाती है और कन्विंस करती है फैमिली को। तो ये इसमें प्रिटेक्स्ट है। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे हुआ करता है कि सपोज दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को जान से मार दिया, तो जो मर गया है उसकी फैमिली अगर माफ कर देती है तो माफी मिल जाती थी, एंड ही वॉज नॉट गिवन एनी पनिशमेंट एट ऑल। तो इन चीजों को आफ्टर द कॉर्नवालिस कोड खत्म कर दिया गया कि नहीं, इस तरीके से आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, एंड इफ अ पर्सन विद इंटेंशन हैज किल्ड समवन देन he'll have to pay the price to it and he'll have to go under the bars। ओके, तो ये कुछ चेंजेस लेके आए गए। इसके अलावा एम्प्यूटेशन का एक और था कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाए। नो, इट वाज अ टू सिवियर अ पनिशमेंट टू गिव। तो इसको भी रिप्लेस किया गया कि भाई आप हार्श पनिशमेंट दे दो, बट इट शुड बी टेम्पररी बाय नेचर। If some person has committed a theft of a particular amount of a particular product which amounts to 50 rupees, 100 rupees or this kind of amount which is not that huge, then proportional to that particular monetary value the person should be punished। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी और इक्विटी का सिद्धांत जो है ये लेकर आए थे कॉर्नवालिस कहीं ना कहीं, कि भाई जिस तरीके से जिस नेचर का क्राइम हो उसी नेचर का पनिशमेंट भी होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ चेंजेस लेकर आए थे। इसके अलावा रिलीजियस परसुएशन नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब जैसा मैं आपको बताया ही कि भगवान को मानकर जो जिस भी धर्म का है वो अपने भगवान को मानकर अगर वो किसी भी तरीके का गवाही देता है तो उसको सच मान लिया जाता था, उसको कार्डिनल ट्रूथ मान लिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि भगवान का नाम लेके कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। तो इस तरह की जो नॉट सो प्रैक्टिकल बातें हैं दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ इटसेल्फ, एंड what it basically made to happen is that it gave way to the system in which a particular person who is not belonging to the same religion can give evidence to another person's act or committing a particular crime. So a non-Muslim could give testimony against Muslim। तो इस तरह की कुछ चीजें लेकर आई गई जिसके अंदर की अब नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं वो मुस्लिम केसेस के अंदर टेस्टिमनी दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल ही नहीं था। बिकॉज जो एक सॉरी because earlier a Hindu was not considered to be eligible to give a statement against a Muslim, because it was said that how can a Hindu or how non-Muslim can take a pledge on the name of a Muslim god। Okay, as simple as that। So now after these particular restrictions or these kind of reforms has been done to the criminal administration, so a non-Muslim can also give testimony against Muslims। So these all reforms are made। Now we can look into the observations of the various judicial reforms under Cornwallis। First of all, we look into the principle of equity and Western concept of justice। जैसा कि आप देख ही रहे, इक्विटी की बात मैंने पहले ही बताई कि जिस तरीके का क्राइम है उसी तरीके का पनिशमेंट होना चाहिए। अब किसी ने चोरी की है 20 रुपए की, उसका हाथ काट देना तो कहीं से भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। इक्विटी का कहीं ना कहीं ये भी मतलब है कि यूरोपियंस जो थे और या फिर जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, ही वॉज मेड अकाउंटेबल टू हिज एक्ट्स। ही कुडंट एक्ट आर्बिट्रेरीली। अब कहीं ना कहीं वो लोकल जो सिविल कोर्ट्स हैं, ही वॉज मेड अकाउंटेबल इफ ही इज डूइंग सम करप्शन, देन इवन एन इंडियन कैन एप्रीहेंड हिम इन द कोर्ट, can pull him into the justice system, and if possible, if he goes through the various processes, then he can make sure that that particular district collector or judge can be punished also। So ये कहीं ना कहीं इक्विटी जो है वो लेकर आए। इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर होता है। इक्वालिटी बेसिकली ये है कि
मतलब इक्वल चीजें दोनों को बराबर दे देना। और इक्विटी का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि जिसको जितना द पर्सन हु डिजर्व्स ही शुड बी गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स बेसिकली। सो इक्विटी लेकर आई गई। इसके अलावा वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इससे पहले सिविल केसेस में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ चलता था, और कहीं ना कहीं जो आपके क्रिमिनल केसेस में है मोहम्मडन लॉ चलता था। तो वहां पर जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें एविडेंसेस की बात की जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं रैशनैलिटी की बात की जाती है, और साथ ही साथ ये जो रिलीजियस कंसेप्ट है उसके अंदर, रिलीजियस का इफेक्ट है उसके अंदर, उसको थोड़ा दूर रखा जाता है। तो इस तरह की चीजें लेके आई गई। इसके अलावा जो कोडिफाइड सेक्युलर लॉ रिप्लेस रिलीजियस लॉ, अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स वर नाउ अलाउड टू गिव टेस्टिमनी अगेंस्ट मुस्लिम्स, और किस तरीके से क्रिमिनल सिस्टम के ऊपर जो मोहम्मडन लॉ का जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, या फिर ऐसा नहीं किया गया कि हिंदू लॉ लेके आ जाए उसकी जगह। तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की तरफ जो है हमारे लॉज जो है, क्रिमिनल लॉज जो है वो बढ़ चुके थे, तो उनका कोडिफिकेशन किया गया। कोडिफिकेशन कहने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप उसको एक बहुत ही ऑफिशियल सिस्टम में लेकर आए। ओके, तो ये हो गया। और सोवरेनिटी ऑफ लॉ प्रोक्लेम, सोवरेनिटी ऑफ लॉ बेसिकली मींस कि लॉ जो है दैट इज पैरामाउंट। ओके, लॉ पैरामाउंट है, और जितने भी लोग हैं उनको सेम लॉ के अंडर ही ट्राई किया जाएगा। जैसा कि हमने पिछले केसेस में देखा ही, जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत लॉ जो है वो इक्वल कर दिया गया फॉर एवरीवन, एंड even a particular person if he wants to do trade also, he'll have to commit to the local courts and all. So इस तरीके से sovereignty of law जो है उसका सिद्धांत जो है वो कॉर्नवालिस was very much happy to implement, and he was successful also into that. Okay, even government officials were tried in courts. जैसा कि मैंने बताया कि now it was possible to try a particular government official in the court itself, और इसके लिए separation of power जो है वो की गई, जिस कारण से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसा इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट का जो इंसान है, he was devoid of the powers, magisterial powers, okay, and the civil jurisdiction powers, so that he can be tried if he does something unsavory. अगर वो corrupt activity perform कर रहे हैं तो फिर just because he is collecting revenue, he shouldn't be trying his own cases. For that some reforms were done. Now ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब there were some नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि जो विल बी हैंडलिंग द क्वेश्चंस ऑल्सो, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, ऑब्जर्वेशन और जुडिशियल रिफॉर्म्स अंडर कॉर्नवालिस, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन की क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बारे में, क्रिटिकल इवैल्यूएशन का बेसिकली मतलब यही होता है, जब आप यूपीएससी के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं वहां पे उसका देखिए, वैसे क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में आके ढूंढेंगे तो आपको बहुत तरीके की चीजें मिल जाएंगी, बट मैं आपको एग्जैक्टली वो बताना चाहता हूं जो यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में होता है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकल एग्जामिनेशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात की जाती है, तो व्हाट यूपीएससी इवैल्यूएटर्स एक्सपेक्ट इज दैट यू गिव सम पॉजिटिव पॉइंट्स, you give an intro, give some positive points, give some negative points, and with a way ahead you conclude your answer. तो जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इस तरह आप देख रहे हैं कि पहले हमने 4-5 पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए कि किस तरीके से कॉर्नवालिस कोड जो है वो अच्छी चीजें लेकर आया, किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया, एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट। द फर्स्ट वन वाज कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉमन मैन। आप ये समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे के सारे जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स विच द गवर्नर जनरल एंड द कंपनी ब्रॉट टू इंडिया, दीज आर वेरी वेस्टर्न टू इंडिया। जो लोकल इंडियन पीपल थे उनको इसके बारे में कोई भी खास आइडिया नहीं था, तो उनको समझने में बड़ी दिक्कत हुई। ठीक है, इसके अलावा जस्टिस बिकेम एक्सपेंसिव। अब देखिए वकीलों की बड़ी ज्यादा रोल यहां पे बढ़ जाता है। पहले क्या होता था कि लोग राजा के पास चले जाते थे, राजा दोनों पक्षों की बात सुनता था और उन लोगों से ही सुनता था, और उसको जो सही लगता था वो करता था। उसको लगता था कि भाई जिसकी गलती है उसको वो सजा दे देता था, या और जो सही है अपनी जगह पे he used to give some gifts and all and send them back. But now litigations have started. अब दिक्कत ये हो गई कि कहीं ना कहीं I will go for the person who can fight my case.
ओके आज भी आप देखते हैं कि जिनका वकील अच्छा होता है वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर नॉट एबल टू sorry, they are not able to despite of being wrong in that particular case, they are able to win that case. So कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो गया और गरीब लोगों से जो जस्टिस है वो दूर होता चला गया. इसके अलावा बहुत सारे केसेस बढ़ गए. अब जब एक नया कंसेप्ट आया था जिसके अंदर कि कोई इंसान किसी भी केस कर सकता है, तो पहले जब लोकल जमींदार ही ये जजमेंट किया करते थे और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, तो उस टाइम पे ये इश्यूज नहीं आया करते थे कि बहुत सारे लोग पहुंच जा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोकल नॉलेज था लोगों को. बट नाउ व्हेन एवरीवन वाज पुट ऑन द सेम पेडिस्टल, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गोइंग टू द कोर्ट्स एंड द लिटिगेशंस इंक्रीज. और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इतने सारे केसेस को हैंडल किया जाए. ओके इसके अलावा लॉ कोर्ट्स प्रूव्ड इनसफिशिएंट, व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल जुडिशियल फंक्शनरीज थी उनका कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो गया. कहने का मतलब लोकल पंचायत हो गए, मुफ्तीज हो गए, काजीज हो गए, जमींदार हो गए, जो कि पहले लोकल सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो गए. और इसके कारण बहुत इश्यूज भी हुए क्योंकि जो यूरोपियन जजेस थे वहां पे, दे वर वेरी मच, दे हैड नो आइडिया अबाउट हाउ द इंडियन सिस्टम यूज्ड टू वर्क. इवन Lord Minto give this remark that out of 10 judges who are coming to India, 9 go back from India without knowing a bit about India. तो 10 में से 9 लोग जो थे वो बिना कुछ जाने यहाँ पे आते थे, यहाँ पे जजशिप करके चले जाते थे, उन्हें सिस्टम के बारे में कोई आइडिया नहीं आता था. तो ये कुछ अच्छाई और बुराइयां हैं ऑफ कॉर्नवालिस कोड as far as judicial reforms are concerned. Okay, now in the next session we'll talk more about what has been done during the Cornwallis's Governor Generalship. Okay, thank you class.